of NEP. The document which you are seeing right now, I am showing you the NEP document, and she has worked on NEP, and she will be delivering lecture giving you the direct experience of NEP. And before calling ma'am for welcome address, I am very much thankful to participants that because of your active participation, this program will be successful. And now I would request our director ma'am to welcome you formally. Ma'am, Faiza. Thank you. Thank you so much, Dr. Shakir. Thank you for these opening remarks. My dear participants, good afternoon once again. I take this opportunity to welcome our very eminent resource person, Professor Mirza Mohammad Sufyan Beg. As you can see, he has joined so well in time. And I welcome all other participants who are, of course, from all parts of the country. And we have a good registration for this NEP orientation and sensitization program, which is our second one for the month of April and our second one for the current fiscal year. We are very humbled by the fact that in the last fiscal year, we could touch upon more than 1,350 participants, and they were all higher education teachers and practitioners all across the country, and we could do with the cooperation of our coordinators like Dr. Shakir and resource persons like Professor Beg, that we could do 11 courses. I have I'm sanguine. I have sanguine hopes that this year too, the message for these paradigm changes, these transformational changes that the national education policy envisions to bring in the regulatory regime, to bring in the leadership and governance, to bring in the entire pedagogy, of which, of course, ICT is an integral part, and Professor Beg is here to speak to you on outcome-based education. So this is all about sensitizing the teachers, because the teacher will play the key role in bringing these changes and in finally transforming the vision into reality. We look at all of you as leaders for the future and as harbingers of excellence, of raised academic standards, and of world-class universities in the future. Dr. Shakir has taken great pains in putting this timetable together. As he already mentioned, very eminent people will be speaking to you. We have straight from the horse's mouth, the OSD of the NEP. She will be taking up your questions and answers and how you need to implement this. All of you must be at a certain stage of the implementation of this policy. Say, for example, FIUP, I'm sure everyone in every college you have it. But then I'm also sure that we do have some qualms, we do have some skepticism about how this has to be done. So all these quagmires will certainly our resource person will try their best to increase your perceived ease of use of the NEP parameters. Please be punctual, please be regular. We will take one test today, that will be your MCQ 1, and we will take one test on your last day, that will be your MCQ 2. Please note that you will get your certificate only if you have appeared in both the tests and you have submitted the scores of both the tests and you have attended all the classes. This is an off-working hours course. You don't need a leaving letter for that, but attendance is 100% compulsory. Also, go through the guidelines that we have posted on the group. Dr. Shakir is always there to facilitate, to take up any more questions and answers. And of course, I'm also always there. Our technical assistant is here. Participants, please make sure that you do your MCQ as it is shared here with you. If you submit your MCQ marks tomorrow or after 5 hours, then it will not be valid, because what kind of test is valid after the paper has been out for more than 5 hours. So this is my only request. And if you have any questions, raise your hand. Do not try to interrupt the flow. All our resource persons are capable enough to speak to you bilingually.
The medium of instruction here is English, and the slides will all be in English. But if, I mean, because I can see some comments coming, बहुत से लोग यहाँ पे ये अपनी अपनी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि हिंदी में बात की जाए. हमारे सारे रिसोर्स पर्सन्स हिंदी में बात कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये जो ग्रुप है इसमें बहुत से लोग उत्तर भारतीय तो होते हैं, साथ साथ दक्षिण भारतीय भी होते हैं, और वो पूरी बात मुकम्मल तौर पर हिंदी में नहीं समझ पाते हैं. इसलिए हमें थोड़ा सा द्विभाषी यहाँ पे रखना पड़ेगा. We have to be tolerant of each other. With that, I will not take much of your time. मैं एक दफा फिर I extend my heartfelt welcome to both the coordinator and the resource person and all the participants, and I wish everybody the very best. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, and we are thankful to you, ma'am. Despite your busy schedule, you have spared time. We know that not apart from this NEP orientation, there are refresher courses, FDPs, and orientation programs which are regularly organized by HRDC, and you are busy in all those programs. And participants, one information I would like to share with you that you have joined a top ranking HRDC of HRDC of India. We are always in top 5. I think last year we came second. We just missed by few points. So and it is the credit goes to one and only ma'am Faiza ma'am for her dynamic leadership, ma'am. Thank you, ma'am. So now it's a time to listen to very seasoned professor of this university, very senior professor of this university, Sufyan Beg sir. As you can see, he has already joined us, Sufyan Beg sir. Now I would like to introduce him with his permission, sir. Just I need 1 or 2 minutes, sir. Yes, sir. Participant Professor Sufyan Beg sir has completed his BSc Engineering from AMU in first position, and he is MTech from IIT Kanpur, and he is PhD in Computer Technology from IIT Delhi. Sir has completed his postdoctoral research from United States of America, and sir is the current principal of Zakir Hussain College of Engineering and Technology. I think you are aware from this college. It's one of the top ranking college of India. Sir has worked as chairman of, sir is currently the chairman of Alumni Affairs Committee of AMU, and sir has worked as the head of the Department Computer Engineering AMU also. And many patents are to his credit. He has published 2 books, and he has contributed around 30 chapters in different books, and he has published around 65 research papers, and he has also presented near about 100, more than 100 papers in different national and national seminars. I have old data. I think the number has increased now by now, and many awards he has been given by various organizations like Sir Syed Global Excellence Best Professor Award. He was given in 2018. He was also given award in 2018 by another agency. Because we are short of time, so I am not, because it will take a whole day in order to read his CV. So you can see his CV, which is there on the website. So thank you once again, sir, that you have joined us, sir. You are also busy in many academic things. So thank you once again, sir. On the request of ma'am, you are here. I know that, sir, how busy you are. Sir will talk on the topic outcome-based education. Participants, now you will listen to Sufyan Beg, sir. Okay, thank you very much, Shakir Saab. Thank you very much, Faiza madam. Now I'll be sharing my slides and I'll begin my presentation. Thank you very much for making me a part of this. It is always a pleasure to interact with the young faculty members, because that energizes you that much more. So, Shakir Saab, can you help me? Are you able to see my slides? Yes, sir, I am seeing, sir. Yes, your slides are visible, sir. And are they moving also? Yes, sir, they are. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. So, dear participants, we are going to talk about outcome-based education and how does it assure quality for us. So, outcome-based education and quality assurance is the topic of discussion today. As has already been introduced by Shakir Saab, I am currently the principal of the Zakir Hussain College of Engineering and Technology at the Aligarh Muslim University, Aligarh. The first and the foremost question that I'll throw at all of you is, can we quantify quality? क्या quality को quantify किया जा सकता है? It is at the back of the mind of all of us
that quantity and quality are two contradictory terms. क्वालिटी की बात की जाए तो क्वांटिटी की बात ना की जाए, क्वांटिटी की बात की जाए तो क्वालिटी की बात ना की जाए. They are not connected. But that's not quite true. There is this good old saying, what you can't measure, you can't control. If you can't measure temperature, you won't be able to control it. If you can't measure speed, you won't be able to control speed. Likewise, if you go on, if you can't measure quality, you won't be able to control quality. तो आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी मेजर करनी पड़ेगी, क्वांटिफाई करनी पड़ेगी क्वालिटी. जो बात मैं कह रहा हूं, in order to assert what I'm saying, I'll take your attention to an accident that happened a few years back, but we have a lesson to learn from it. There was this Air France flight which crashed into the Atlantic Ocean while flying from South America to Paris. Everybody on board got perished. It crashed into the Atlantic Ocean. A very sad accident. When people started investigating the cause of the crash, they found out, to their shock and dismay and surprise, that the bones of the human remains were broken. When they dug out the human remains from the depth of the ocean, they found out that the bones of the human bodies were broken. Something very shocking. The plane has plunged into the ocean. They have drowned. The human beings have drowned into the ocean. How can their bones be broken? And that too of everybody. So they kept on investigating and they came to the conclusion that actually the speed sensor of the aircraft had gone bad. Speed sensor खराब होने की वजह से the plane oversped to the extent that it broke into two even at that height. And because of the air pressure, even at that height, the bones of the human beings were broken before they drowned in the ocean. Very sad accident, लेकिन उससे हमें एक लेसन मिलता है. If you can't measure speed, you can't control it. किसी हद तक हम ये बात हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो तब भी वहां पता लग सकती है. आप स्पीडोमीटर मत देखिए तो आप नहीं बता सकते कि आप ओवर स्पीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. 100 है, 120 है, 80 है, 140 पहुंच गया, कुछ पता नहीं लगता है ना. जबकि आप जमीन पे ड्राइव कर रहे हैं, ट्रीज पीछे भाग रहे हैं, जमीन नीचे निकल रही है, तो इतनी हाइट पर जब प्लेन जाता है और टर्बुलेंस नहीं होता तो लगता है प्लेन रुका हुआ है, हालांकि वो तो चल रहा है 850 किलोमीटर आवर, 950 किलोमीटर पर आवर. और बड़े जो एयरक्राफ्ट होते हो तो 1000 किलोमीटर पर आवर भी क्रॉस कर जाते हैं, है ना. तो क्या हमें लेसन मिला कि इफ यू कांट मेजर स्पीड यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल इट. तो इसी तरह अगर हम क्वालिटी मेजर नहीं करेंगे तो हम क्वालिटी को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे. तो द बॉटम लाइन इज assessing the attainment of quality is the key to quality control and enhancement. जब क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे तो एनहांसमेंट ही होगा, यानी क्वालिटी बढ़ाएंगे आप. कम तो कोई नहीं करना चाहेगा क्वालिटी, है ना. टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, स्पीड कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट क्वालिटी इट नीड्स टू बी एनहांस्ड ओनली. तो इससे हमें पता लगा कि क्वालिटी को क्वांटिफाई करना पड़ेगा, तब क्वालिटी को कंट्रोल कर पाएंगे. Now, what are the levels of quality in education? See, the first and the foremost level is approval, जिसमें आपको bare minimum facilities चाहिए. Are classrooms there? Are labs there? Is library there? Are teachers employed? Approval मिल गया. For example, technical education, the approval is provided by All India Council for Technical Education. फिर आप अगले लेवल पर जाते हैं जहां पे आप क्वालिटी की बात करना शुरू करते हैं, और आपने सुना होगा ISO सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है. अब ISO सर्टिफिकेशन जैसे प्रोडक्ट्स का होता है वैसे सर्विसेज का भी होता है, और ISO सर्टिफिकेशन इज देयर फॉर एजुकेशन एज वेल. अब यहां पर देखा जाएगा कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स हु आर एम्प्लॉयड, whether the classrooms are smart classrooms or not, whether they have the sufficient teaching aids, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स लेटेस्ट एडिशंस हैं कि नहीं है, लाइब्रेरी के अंदर इक्विपमेंट सोफिस्टिकेटेड है नहीं है. तो अब क्वालिटी की बात होने लग जाएगी, है ना.
तो हमें रुक जाना चाहिए भाई, हमने अप्रूवल बेयर मिनिमम किया और क्वालिटी की बात आईएसओ से लिया है। फिर भी एक्रेडिटेशन की क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज accreditation doesn't just ensure quality, it also brings in the factor of mutual recognition. इसलिए कि accreditation जो होगा वो किसी अकॉर्ड के अंडर होगा, किसी एग्रीमेंट के अंडर होगा, और उस एग्रीमेंट में सिग्नेटरी कंट्रीज मस्ट हैव एग्रीड to the fact that we will mutually recognize the degrees accredited by each other. ISO certification अगर किसी के पास है तो आई मे एक्सेप्ट, आई मे नॉट एक्सेप्ट, मैं कह सकता हूं मैं नहीं मान रहा ISO सर्टिफिकेशन, लेकिन एक्रेडिटेशन किसी अकॉर्ड के अंडर में होता है, एग्रीमेंट होता है कंट्रीज के बीच में कि हम लोग एक दूसरे की डिग्रीज को हम म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करेंगे। अब देखिए यहां पर एक बात बहुत बारीकी से समझ लीजिए, ट्राई टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। इन इंडिया, no university can become a university unless passed by an act of law. I'll repeat. In India, no university can become a university unless passed by an act of law. If it happens to be an act of the Indian Parliament, it becomes a central university. If it happens to be an act of the State Assembly, it becomes a state university. तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी के बनने में लॉ कहां पास हुआ। इट इज नॉट अबाउट फंडिंग, फंडिंग सेंटर से आ रही है या स्टेट से आ रही है, दैट डजंट मैटर। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी कहीं से फंडिंग नहीं आ रही है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती जब तक कि उसका लॉ पास ना करवाया जाए, चाहे स्टेट में चाहे सेंटर में। ठीक है, तो अब जो लॉ पास हुआ वो एक्ट बन गया, है ना। तो सबसे ऊपर होता है एक्ट, जैसे एएमयू का अपना एक्ट है, बीएचयू का अपना एक्ट है। ये तो हो सकता है कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कॉमन एक्ट हो, बट देयर हैज टू बी एन एक्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एन एक्ट फ्रॉम द असेंबली फॉर अ स्टेट यूनिवर्सिटी। फिर ये एक्ट स्टैट्यूट्स को डिफाइन करता है, स्टैट्यूट्स ऑर्डिनेंस को डिफाइन करते हैं, ऑर्डिनेंस रेगुलेशंस को डिफाइन करते हैं। ये हायरार्की है। सबसे ऊपर एक्ट जो पास हुआ पार्लियामेंट में या असेंबली में, एक्ट से पावर आती है स्टैट्यूट्स में, क्योंकि एक्ट होगा कंसाइज, वो कहेगा कि भाई ये डिटेल्स आपको मिलेंगी स्टैट्यूट्स में। तो अब स्टैट्यूट्स को पावर मिल गई एक्ट से। फिर स्टैट्यूट्स कहेगा फर्दर डिटेल्स होंगी ऑर्डिनेंस में, ऑर्डिनेंस कहेगा फर्दर डिटेल होंगी रेगुलेशंस में। अब जैसे ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं, एकेडमिक भी हो सकते हैं, लेकिन उन सब में पावर आती है एक्ट से, आती है स्टैट्यूट से होते हुए। ठीक है, अब जैसे वाइस चांसलर कोई एक्शन लेता है किसी यूनिवर्सिटी का, सो दैट इज टेनेबल बाय लॉ। व्हाई? बिकॉज द पावर इज ग्रांटेड टू द वाइस चांसलर बाय द एक्ट एंड स्टैट्यूट्स। वीसी ने अपॉइंट किया पीवीसी को, डीन को, प्रॉक्टर को, चेयरमैन या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, तो अब वो सब जो एक्शन ले रहे हैं वो कोर्ट में विद स्टैंड करेगा, इसलिए कि वीसी ने उनको अपॉइंट किया और वीसी को पावर मिली एक्ट एंड स्टैट्यूट से, है ना। तो इस तरह काम करता है। वही बात यहां पर है, एक्रेडिटेशन में वो पावर है जो अकॉर्ड से उसको मिली है ना, जो एग्रीमेंट साइन किया कंट्रीज ने। अब एग्रीमेंट साइन किया तो अब हम रिफ्यूज नहीं कर सकते, है ना। जैसे दो कंट्रीज ने साइन किया अकॉर्ड, अब एक दूसरे की डिग्रीज जो एक्रेडिटेशन हुई हैं उनको रिफ्यूज नहीं कर सकते। वो आईएसओ रिफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि दैट इज नॉट बाइंडिंग बाय एनी लॉ। ठीक, तो इसलिए एक्रेडिटेशन के अंदर सिर्फ क्वालिटी चेक नहीं है, साथ में वो म्यूचुअल रिकॉग्निशन है विच गिव्स इट द ड्यू इंपॉर्टेंस। ठीक, अच्छा, अब इंडिया में दो तरह के एक्रेडिटेशन आपने सुने होंगे, नैक होता है, एनबीए होता है। नैक इज इंस्टीट्यूट वाइड, एनबीए प्रोग्राम स्पेसिफिक। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। नैक में यह है कि अगर इंस्टीट्यूट को मिल गया तो सारी डिग्रीज जो इंस्टीट्यूट देगा सबको एक्रेडिटेशन मिल गया। एनबीए डिग्री स्पेसिफिक, अगर उसने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस को दिया है तो वो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस को ही रहेगा, वो एमटेक इन कंप्यूटर साइंस का नहीं है एक्रेडिटेशन।
या बीटेक इन आईटी के लिए भी नहीं है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए अलग अलग कराना पड़ेगा। इसका अपना फायदा नुकसान है। इसमें यह है कि जो वीक डिग्रीज हैं एक्रेडिटेशन नहीं होंगी, लेकिन वीक डिग्रीज की वजह से स्ट्रॉन्ग डिग्रीज रह जाएं ऐसा भी नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग डिग्रीज को मिल जाएगा और वीक डिग्रीज को नहीं मिलेगा। तो वो डिग्री स्पेसिफिक एनबीए में होता है और इंस्टीट्यूट वाइड नैक में होता है। अब एक्रेडिटेशन है क्या, है ना? सो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ एक्रेडिटेशन दैट आई हैव सीन। अब आप सोच रहे होंगे वन ऑफ द डेफिनेशंस का क्या मतलब है? डेफिनेशन तो यूनिक होनी चाहिए, बात सही है, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द गुड ओल्ड स्टोरी दैट ऑल ऑफ अस हैव हर्ड, that a few blindfolded person were asked to touch an elephant and describe it. So the person who touched the trunk of the elephant, he said it's like a python. The person who touched the feet of the elephant, he said it's like a tree trunk. The person who touched the tummy of the elephant, he said it's like a wall. The person who touched the ears of the elephant, he said it's like a big hand fan. तो सेम एनिमल है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। क्यों? इट्स अ ह्यूज एनिमल। एक आदमी पूरा डिस्क्राइब या उसको फील नहीं कर पा रहा है। तो इसी तरह एक्रेडिटेशन भी एक इतना डाइवर्सिफाइड टर्म है दैट यू मे रिक्वायर सेवरल डेफिनेशंस। दिस इज द डेफिनेशन दैट आई लाइक द मोस्ट, आई एम शेयरिंग विद यू। अब देखिए गौर से, क्या है एक्रेडिटेशन? फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन। प्रोग्राम इन द केस ऑफ एनबीए एंड इंस्टीट्यूशन इन द केस ऑफ नैक, जैसा कि अभी बताया मैंने। by an external agency, मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ, एक्सटर्नल एजेंसी, on the basis of impartial assessment of the attainment of specific requirements against well defined criteria। तो तीन टर्म्स इसमें मैंने पहले से अंडरलाइन की हुई हैं, एक्सटर्नल एजेंसी हो और इम्पार्शियल असेसमेंट हो और वेल डिफाइंड क्राइटेरिया हो। ठीक है, ये दोनों अलग अलग जरूरी हैं। एक्सटर्नल एजेंसी का होना अलग जरूरी है, इम्पार्शियल असेसमेंट का होना अलग जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब एक्सटर्नल एजेंसी तो होगी और हम इम्पार्शियलिटी को हम नहीं अश्योर कर सकते, या हम इंटरनल एजेंसी से करा लेंगे, इम्पार्शियल कराएंगे। दोनों बातें एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सटर्नल एजेंसी भी होना जरूरी है, आप इंटरनल से कराइए चाहे जितने इम्पार्शियल हो जाइए, there will be a question mark. Self praise is no praise. People will always doubt कि आपने इंटरनल एजेंसी से कराया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल हुआ होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। अच्छा, एक्सटर्नल एजेंसी से करा ले लेकिन इम्पार्शियल असेसमेंट है। अब फिर देखिए दो टर्म्स की तरफ I'll divert your attention। एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। हम लोग जो स्टूडेंट टीचर्स होते हैं ना, वी हैव अ वेरी नैरो परसेप्शन ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। हम ऑब्जेक्टिव से समझते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। सब्जेक्टिव मतलब ऐसे टाइप, ठीक है, गलत नहीं है, बट दैट्स अ वेरी नैरो डेफिनेशन। ऑब्जेक्टिव वो होता है कि इवन इफ यू चेंज द पर्सन, द करेक्ट रिस्पॉन्स रिमेन्स अनचेंज्ड। सब्जेक्टिव में ये है, आपने एक ऐसे लिखा, मिस्टर एक्स को दिया उन्होंने 10 में से 8 दिए, मिस वाई को दिया उन्होंने 10 में से 8.5 दे दिए, मिसेस जेड को दिया उन्होंने 7.5 ही दिए, है ना? तो इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हम इम्पार्शियल असेसमेंट से मतलब यह है कि इट शुड बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल, इट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव। एक टीम आई तो एक स्कोर दिया, दूसरी टीम आई तो दूसरा स्कोर दिया, इसका मतलब फिर वहां पर इम्पार्शियल असेसमेंट नहीं है। और आखिरी चीज क्या है? वेल डिफाइंड क्राइटेरिया होना चाहिए। The rules of the game should be fixed before the game begins। और बता देना चाहिए हर किसी को कि देखिए ये है रूल्स ऑफ द गेम। ऐसा नहीं है कि गेम शुरू हो गया अब आप रूल चेंज कर रहे हैं, नो, आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए, है ना? अब ये भी एक प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ कि हम लोग जो है वो चीज़ों को डिक्लेयर नहीं करते हैं बिफोर हैंड। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, वंस आई वेंट टू द दिल्ली एयरपोर्ट टू पिक समबडी अप। ही वाज एन एल्डरली पर्सन। मैं चाह रहा था गाड़ी जितना आगे जाकर पिक कर सकूं उतना अच्छा है। T2 पर गया था जब T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था। तो एक पुलिस वाला बैठा हुआ था, सो आई ड्रोव द कार इन फ्रंट ऑफ हिम वेरी स्लोली कि मैं अगर उसको रोकना होगा तो मुझे रोक देगा वो। उसने नहीं रोका।
मैं गाड़ी लेके अंदर तक चला गया, उनको पिक करके जब वापस आया तब उसने रोका, आप वहां क्यों गए? वो तो नो एंट्री जोन है, आपका चालान होगा। मैंने कहा भाई अभी मैं आपके सामने से गया, आप रोक देते, मुझे आगे नहीं जाना है, या कहीं लिखा नहीं है कि नहीं जाना है आगे? तो यू नो व्हाट ही रिप्लाइड, ही सेड अगर उस वक्त रोक देता तो अब पकड़ता कैसे आपको, है ना? और ये हम सब की कमजोरी है, पुलिस वालों की कमजोरी नहीं, हम सब की कमजोरी है। हम लोग भी एग्जाम में चीटिंग को रोकना नहीं चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं स्टूडेंट को। अरे भाई अच्छी बात ये होती कि हम चीटिंग करने ही ना देते बच्चे को, नौबत ही क्यों आती कि उसको पकड़ा जाए और उसके खिलाफ एक्शन हो, है ना? जहां दिखा कुछ गड़बड़ कर रहा है हम जाकर उसके पास खड़े हो जाएं, फिर नहीं करेगा चीटिंग। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है ना कि चीटिंग ना हो। मैं ट्रैवल कर रहा था, इंग्लैंड गया मैं। अब वहां पर जो हमारे दोस्त हमें ड्राइव कर रहे थे, उनकी गाड़ी में बीप होने लगी। मैंने कहा किस चीज की बीप है? क्योंकि आसपास कोई पुलिस की गाड़ी है। मैंने कहा अरे तो ये आपकी डिवाइस इलीगल नहीं है, वो पुलिस की गाड़ी बता दे रही है। हमने अपनी मेंटालिटी के हिसाब से कहा, उन्होंने कहा नो, इट इज वेरी मच लीगलाइज्ड। पुलिस वाले अपनी आमद अपना आना दे अनाउंस इट, उसके बाद भी अगर कोई फॉल्ट करेगा तो वो पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि छुप के बैठे हुए पेड़ की आड़ में और इधर कहीं छुप के बैठे हुए और पकड़ लिया, नहीं, लेट इट बी नोन। इसीलिए सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं तो लिख देते हैं यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, कि आप कॉशियस रहिए, हम आपको पकड़ना नहीं चाह रहे हैं लेकिन हम क्राइम नहीं होने देना चाहते हैं, है ना? तो वो वेल डिफाइंड क्राइटेरिया होना चाहिए, पहले से सबको पता हो कि इस पर एक्रीडेशन मिलेगा और ये नहीं होगा तो एक्रीडेशन नहीं मिलेगा, फिर आप असेस कीजिए। तो ये डेफिनेशन हुई, फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन एज द केस में बी बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इम्पार्शियल असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट of the attainment of specific requirements against well defined criteria. अब इंडिया में बात करें तो accreditation, as I just now said, institutional accreditation by National Assessment and Accreditation Council NAC, which is an autonomous body established by the University Grants Commission in 1994. टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA, डिप्लोमा लेवल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, हॉस्पिटैलिटी, मास कम्युनिकेशन, and the list may go on. They may keep on adding more subjects to it. What is the significance of accreditation? At national level, it is easier for students and parents to select the institutions and programs for admission. Accredited डिग्री जहां मिल रही हो या accredited इंस्टीट्यूट जो है उसमें एडमिशन ले लो, क्योंकि वहां की डिग्री कई कंट्रीज में एक्सेप्टेबल होगी। और नहीं एक्रेडिटेशन है तो मत लो, क्योंकि डिग्री मानी जाए ना मानी जाए, दैट इज नॉट एंश्योर्ड। It helps employers in deciding about the institutions for recruitment of graduates. अगर accreditation मिला हुआ है इसका मतलब certain minimum quality level must be there, so they can easily employ the graduates. It helps institutions to avail the benefits from regulatory bodies and funding agencies. जैसे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को फायदा हुआ, हमारे यहाँ सारी बीटेक की डिग्रीज और ज्यादातर एमटेक की डिग्री सब एक्रेडिटेशन है, तो वी कुड गेट अ वर्ल्ड बैंक grant for 15 crores, TechIP 2, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फेज 2 में हमें 15 करोड़ मिले। फिर हमने परफॉर्म किया तो TechIP 3 फेज में हमको फिर 7.7 करोड़ मिले, और उनकी रिक्वायरमेंट ये थी, डिलीवरेबल ये था कि ऑल योर डिग्रीज मस्ट बी एक्रेडिटेड। तो हमें फायदा हुआ फंडिंग एजेंसी से। ऐसे ही रेगुलेटरी बॉडीज आपने सुना होगा, यूजीसी देती है ग्रेड 1 ऑटोनॉमी, ग्रेड 2 ऑटोनॉमी, ग्रेड 3.5 से ऊपर है तो ग्रेड 1, और 3.25 से ऊपर है तो ग्रेड 2, और 3.0 से ऊपर है तो ग्रेड 3 ऑटोनॉमी। उसकी अपनी डिटेल्स हैं सारी। तो इट हेल्प्स इंस्टीट्यूशंस टू अवेल द बेनिफिट्स फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज एंड फंडिंग एजेंसीज। इट हेल्प्स इंस्टीट्यूशंस इन डिसाइडिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट्स और एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस। अब दो इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, एक लेवल पर हैं, आसानी से आप स्टूडेंट्स का एक्सचेंज कर सकते हैं। एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट एक दूसरे चला गया, दूसरा वहां से यहाँ आ गया। अब एक इंस्टीट्यूशन तो एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, दूसरे को नहीं मिला हुआ है, तो अब एक्सचेंज के लिए आपको कई चीजें देखनी पड़ेंगी। डिग्री जो है वो इक्वल है नहीं है, और क्या स्टैंडर्ड है और कितना लेवल है। हमारा बच्चा जाएगा तो वो उसकी इसकी क्वालिटी डिटोरिएट तो नहीं हो जाएगी, उनका बच्चा आएगा तो हमारे यहाँ कोप अप कर पाएगा नहीं कर पाएगा, है ना? तो एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट बिकम्स ईजियर।
तो ये तो फायदे हो गए नेशनल लेवल के। इंटरनेशनल लेवल, mobility of students for pursuing higher studies and employment in other countries, that becomes seamless, है ना, because of the accord that I just now talked. इसको और फर्दर अगली स्लाइड में एलाबोरेट करते हैं। ग्लोबल मोबिलिटी से क्या मतलब है? देखिए, मल्टीनेशनल अकॉर्ड्स फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एक्रेडिटिंग प्रोसेस एंड देयर बाय रिकॉग्नाइजिंग द एक्रेडिटेशन। जैसे वॉशिंगटन अकॉर्ड साइन हुआ 1989 में फॉर इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम, सिडनी अकॉर्ड इन 2001 फॉर इंजीनियरिंग डिप्लोमा पॉलिटेक्निक प्रोग्राम्स, डबलिन अकॉर्ड इन 2002 फॉर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन प्रोग्राम, सियोल अकॉर्ड 2008 फॉर प्रोफेशनल इंजीनियर्स इन कंप्यूटिंग एंड आईटी रिलेटेड फील्ड्स। कोई एग्जांपल दी मैंने, और भी हो सकते हैं अकॉर्ड्स। अब जैसे वॉशिंगटन अकॉर्ड की बात करें हम, दिस वाज एन अकॉर्ड साइंड अमंग 6 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस इन द ईयर 1989 टू बिगिन विद। 6 कंट्रीज थी। अब क्या बात हुई इसमें? यह बात हुई कि आयरलैंड के एक्रेडिटेशन बोर्ड ने अगर किसी डिग्री को एक्रेडिटेशन दिया है तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, दे हैव टू नेसेसरली एक्सेप्ट दैट डिग्री एंड रिकॉग्नाइज दैट डिग्री। रिफ्यूज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इसी तरह न्यूजीलैंड का एक्रेडिटेशन बोर्ड अगर किसी डिग्री को एक्रेडिटेशन देता है तो ऑल द रिमेनिंग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूके, यूएस, दे विल हैव टू नेसेसरली रिकॉग्नाइज दैट डिग्री। दे कांट रिफ्यूज इट। आईएसओ को कर सकते हैं रिफ्यूज, जैसे मैंने पहले बताया। सो द पर्पस वाज टू म्यूचुअली रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द क्वालिफिकेशंस accredited by signatories, है ना? So that is where it gets power from. Accreditation get its power from. The accord at present has 15 full signatories and 5 provisional signatories. आप देखिए अच्छा, ये नंबर जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बढ़े, घट क्यों रहे? मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, जरूरी नहीं है सही हो। अब जैसे यूक्रेन किसी अकॉर्ड का पार्ट है, वहां पे लड़ाई शुरू हो गई, तो यूक्रेन ने विथड्रॉ कि भाई ना हम किसी और की डिग्री मानेंगे ना हमारी डिग्री कोई मानो, हम विथड्रॉ कर रहे हैं। नहीं विथड्रॉ करेगा तो अब उसको कहीं से कोई आया स्टूडेंट तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वॉर जोन है, कैसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं कर सकता, तो अकॉर्ड से विथड्रॉ कर जाए। मैंने एग्जाम्पल दिए। तो ये नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब देखिए, मेंबर्स ऑफ वॉशिंगटन अकॉर्ड हैव आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन को पावर कहां से मिल रही है? इस अकॉर्ड से मिल रही है। इसलिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन पढ़ना जरूरी हो गया। नैक ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो अब या नैक कराइए या एनबीए कराइए, दोनों जगह आपका आउटकम बेस्ड एजुकेशन से, यू कांट रन अवे, आप भाग नहीं सकते। तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अब ये सिग्नेटरीज ऑफ वॉशिंगटन अकॉर्ड है, लिस्ट है, इंडिया भी ऐड हो गया, घटते बढ़ते रहते जैसे मैंने अभी बताया। अब एक्रेडिटेशन मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, एक होता है मिनिमल मॉडल विच डज नॉट इनकरेज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये फिर एक प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज की। हम लोग कोई भी चीज प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो आज की रिक्वायरमेंट को देखकर करते हैं। ब्रिज बनाना है तो आज की डेट में कितना ट्रैफिक है उसके हिसाब से डिजाइन कर देंगे। अब जब तक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, बाय द टाइम इट गेट्स कंप्लीटेड, द ट्रैफिक हैज ऑलरेडी एक्सीडेड द डिजाइन। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या करते हैं, वो आज से 15 साल बाद इस ब्रिज पर कितना ट्रैफिक होगा उसको एक्सट्रापोलेट करते हैं और उसके हिसाब से उसको डिजाइन करते हैं और उसकी एक्सपायरी तय कर देते हैं। भाई 15 साल बाद ये ब्रिज एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायरी का मतलब जरूरी नहीं कि उसको खत्म कर दिया जाए, उस दिन देखा जाएगा कि ट्रैफिक कितना हुआ। अगर वो एक्सीड कर गया है तो उसको रिप्लेस करो, नहीं एक्सीड किया है तो ठीक है, आप उसको 5 साल और बढ़ा लीजिए, देख लीजिए, एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए, उस दिन से एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए कि 5 साल बाद कितना ट्रैफिक होगा, है ना। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इनकरेज नहीं होता है मिनिमल मॉडल में, है ना। फ्यूचरिस्टिक नहीं है मिनिमल मॉडल। आज से 15 साल बाद हमारे कॉलेज का या हमारी डिग्री का ये स्टैंडर्ड रहेगा नहीं रहेगा, वो चीज नहीं है मिनिमल मॉडल में। फिर लोगों ने इनपुट आउटपुट मॉडल की बात की कि भाई अच्छा इनपुट मिले, अच्छा आउटपुट हो। इनपुट से मतलब क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज गुड, आउटपुट मतलब क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स हैज टू बी गुड। फिर लोगों ने कहा कि आउटकम मॉडल क्यों ना देखा जाए, व्हाई?
जैसे एक फार्मर है, he has the most fertile piece of land, ample amount of water, best seeds, good fertilizers, but the crop is not up to the mark. There's something fundamentally wrong. Input तो सारे अच्छे थे, output क्यों नहीं अच्छा मिला? What ultimately matters to a farmer? It is the crop or what is called yield. हाँ, ये बात सही है कि अच्छी क्रॉप अच्छी ईल्ड के लिए रीजनेबली गुड इनपुट चाहिए, लेकिन अच्छा इनपुट देकर आप इंश्योर नहीं कर सकते कि आउटपुट भी अच्छा होगा, है ना? सो वी लुक एट द आउटकम। ग्रेजुएट्स कैसे निकल रहे हैं? अब अगर इनपुट यानी स्टूडेंट्स इनटेक ही पुअर है तो आप अच्छे ग्रेजुएट्स नहीं दे पाएंगे। दैट विल बी अ गार्बेज इन गार्बेज आउट सिचुएशन। लेकिन अगर आपने अच्छे स्टूडेंट्स या रीजनेबली गुड स्टूडेंट्स दिए और फिर भी ग्रेजुएट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो गड़बड़ है। तो हमें आउटकम मॉडल देखना पड़ेगा कि आउटकम कैसा निकल रहा है। नाउ व्हाट इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन? Starting with a clear picture of what is important for students to be able to do, then organizing the curriculum, delivery and assessment to make sure learning happens. You set the bar first, है ना? पहले this is setting the bar first. कोई हाई जंप करने वाला एथलीट है, वो अपनी बार पहले सेट करेगा और फिर दौड़कर उसको क्रॉस करेगा। हाई जंप में क्रॉस कर लेगा तो फिर बार रेस कर देगा, उसको भी जंप कर लेगा, फिर रेस। ये वेट लिफ्टर है, कोई एक वेट उठा लिया तो उसमें फिर ऐड। ऐसा नहीं होता कि पहले मैं जंप कर लूं फिर मेजर कर लेना मैंने कितना जंप किया, पहले मैं उठा लूं फिर देखना कितना उठाया। यू सेट द गोल फर्स्ट एंड देन यू असर्ट टू अचीव दैट गोल। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो एग्जाम्पल सारी खेल की दे रहा हूं, बात आउटकम बेस्ड एजुकेशन की हो रही है, तो आप एजुकेशन के भी एग्जाम्पल ले लीजिए। इफ यू पिक अप अ गुड बुक, in the beginning of every chapter, the author tells you what all you can expect to learn in this chapter, है ना? क्या फायदा होता है? अब आप चैप्टर पढ़ते वक्त आप कॉशियस रहते हैं कि अरे ये मुझे सीखना था। जैसे ही वो टॉपिक आता है आप एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, अरे दिस इज व्हाट आई हैड टू लर्न। आप उसको एक्स्ट्रा कॉशन लेते हैं पढ़ने में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वो फिर समरी देता है कि दिस इज ऑल व्हाट यू हैव लर्नड। अब आप वहां पर असेस कर रहे होते हैं कि मैंने ये सब सीख लिया कि नहीं सीखा। अगर कुछ रह गया सीखने से तो आप वापस जाते हैं, फिर शुरू से पढ़ते हैं, है ना? You may take several iterations to read a chapter to grasp all the salient points of that chapter. So setting the goal first always helps to keep you extra cautious, है ना? तो वही बात आउटकम बेस्ड एजुकेशन में, स्टार्टिंग विद अ क्लियर पिक्चर of what is important for students to be able to do, then organizing the curriculum. देखिए तीन चीजें हैं, curriculum, delivery and assessment, to make sure learning happens in that direction. ये तीन डायमेंशन याद रखिए। curriculum एक है डायमेंशन, डिलीवरी एक है। curriculum बहुत अच्छा बना दिया लेकिन डिलीवरी ऑफ द कोर्स अच्छा नहीं है, और असेसमेंट प्रोसेस, बिकॉज व्हाट यू कांट मेजर यू कांट कंट्रोल, है ना? तो असेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। इसको पिक्टोरियली देख लीजिए, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, व्हाट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू, है ना? फिर आउटकम बेस्ड करिकुलम, आउटकम बेस्ड लर्निंग टीचिंग, हाउ टू मेक स्टूडेंट्स अचीव दैट आउटकम। जो यहाँ पे बार सेट की थी वो अचीव कैसे हो। और फिर आउटकम बेस्ड असेसमेंट टू मेजर व्हाट द स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड, कि उस डायरेक्शन में लर्निंग हुई कि नहीं हुई, उस डायरेक्शन में टीचिंग की नहीं की, और लर्निंग हुई नहीं हुई। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन लीड्स टू आउटकम बेस्ड करिकुलम, लीड्स टू आउटकम बेस्ड लर्निंग टीचिंग, एंड दैट शुड लीड टू आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको मैं कहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लेकर कहीं पेंट ब्रश वगैरह में स्टोर कर लें, क्योंकि हम बार बार इसको रिफर करेंगे, इस फिगर को रिफर करेंगे। ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन का पिरामिड है, विद विजन एट द टॉप, मिशन बिलो इट। मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, आप बस सुनते रहिए गौर से। प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बिलो इट, प्रोग्राम आउटकम बिलो इट, एंड कोर्स आउटकम्स इन द एंड। इस सारे का डिजाइन होता है ऊपर से नीचे, यानी सबसे पहले विजन सेट किया जाता है, फिर मिशन सेट किया जाता है,
फिर प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फिर प्रोग्राम आउटकम्स और सबसे आखिर में कोर्स आउटकम। लेकिन असेसमेंट होता है नीचे से ऊपर। सबसे पहले सीओ असेस किया जाएगा, फिर उसकी बेसिस पर पीओ असेस किया जाएगा, फिर प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स असेस किए जाएंगे एंड सो ऑन। Graduate attributes are those attributes, those qualities which a student or which a graduate of any discipline should have. तो आप प्रोग्राम आउटकम को उससे अलाइन करते हैं। विजन मिशन होते हैं इंस्टीट्यूट लेवल या डिपार्टमेंट लेवल। डिपार्टमेंट भी एक इंस्टीट्यूट ही की तरह इंस्टीट्यूशन है, तो उसका तो विजन मिशन होगा कि विजन क्या है, मिशन क्या है। क्या फर्क है अभी मैं बताऊंगा आपको। और ये दो क्वालिटीज होती हैं प्रोग्राम लेवल। प्रोग्राम से मतलब ये बीए इन हिस्ट्री, एमएससी इन केमिस्ट्री, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, है ना, एमए इन सोशियोलॉजी, ये सब प्रोग्राम्स हैं। तो प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम आउटकम। प्रोग्राम आउटकम वो क्वालिटीज होती हैं जो ग्रेजुएशन के वक्त बच्चे के अंदर होनी चाहिए। ऑल सच एट्रीब्यूट्स which the graduate of that discipline should have at the time of graduation. और प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो क्वालिटीज होती हैं जो फील्ड में जाने के बाद द ग्रेजुएट सेल्फ डिवेलप्स इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ 4-5 years डाउन द लाइन। जैसे बच्चा यहाँ से ग्रेजुएट करके गया तो हमने तो उसको सिर्फ पढ़ाया था ना, हमने ये थोड़ी सिखाया था कि टीचिंग कैसे करनी है या मैनेजर कैसा बनना है या एंटरप्रेन्योर कैसा बनना है। अब वो फील्ड में जाने के बाद 4-5 साल बाद कैसा एंटरप्रेन्योर बना, कैसा टीचर बना, कैसा बिजनेसमैन बना, कैसा मैनेजर बना, है ना। तो वो प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोर्स आउटकम्स वो क्वालिटीज हैं जो उस प्रोग्राम के हर कोर्स को पास करने के बाद उसके अंदर आनी चाहिए। जितने कोर्सेज उसने किए प्रोग्राम में, जैसे जैसे कोर्सेज पास करता जाएगा, एक सेमेस्टर में 5 कोर्स 6 कोर्स किए, जैसे जैसे पास करता जाएगा वैसे वैसे वो क्वालिटीज उसके अंदर आती चली जाएंगी। बहुत से लोग कोर्स को पेपर कह देते हैं, है ना, पेपर बैक लग गई। तो पेपर इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड। कहां से आ गया पेपर? देखिए, जहां पर कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात नहीं होती है, बच्चे ओवरनाइट पढ़ के एग्जाम देते हैं, वहां उसको पेपर कहा जाता है। और जहां पे कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, हर वीक कोई क्विज लिया जा रहा है, कोई असाइनमेंट दिया जा रहा है, कई मिड सेम एग्जाम्स हो रहे हैं, फिर एंड सेम एग्जाम हो रहा है, वो होता है कोर्स। बिकॉज यू हैव फॉलोड द कोर्स ऑफ द सेमेस्टर। इट्स नॉट पेपर बैक का मतलब भाई एंड सेम खराब हो गया बस, नहीं। कोर्स अगर रुक गया इसका मतलब कंटिन्यूअस असेसमेंट सही नहीं रहा, है ना। तो वो क्वालिटीज जो हर कोर्स के पास करने के वक्त स्टूडेंट के अंदर आ जानी चाहिए, वो कोर्स आउटकम है। तो जैसे जैसे बच्चा कोर्स पास करता जाएगा, कोर्सेस पास करता जाएगा उस प्रोग्राम का, उसके अंदर कोर्स आउटकम्स आएंगे, तो प्रोग्राम आउटकम आएंगे जो मैप्ड है उसके अंदर। फिर वो चला जाएगा फील्ड में तो पीईओ उसके अंदर आएंगे, फिर वो उससे आपका मिशन सेट होगा, विजन जो है आपका अचीव होगा। तो डिजाइन चलेगा ऊपर से नीचे और असेसमेंट होगा नीचे से ऊपर। आगे बताएंगे कैसे असेस करेंगे, आगे बताएंगे। अभी जरा सा इन्हीं चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। विजन विजन पहले समझ लीजिए, पहले ये दो में फर्क क्या है, विजन और मिशन में फर्क क्या है। In order to understand the difference between vision and mission, let me tell you a true story. When I was a student of BTech, we had a professor of mechanical engineering in our college who had an old Fiat car. Those were the times when only 2 cars were here in India, Fiat या Ambassador. तीसरी कोई गाड़ी होती थी तो कहते थे कि भाई ये तो इम्पोर्टेड होगी, है ना। तो अब आप सोचिए, प्रोफेसर के पास एक ओल्ड फिएट कार है, एट द बैक ऑफ विच देयर वाज अ स्टिकर व्हिच रेड, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ रोल्स रॉयस। पुरानी फिएट कार के पीछे स्टिकर लगा है जिस पे लिखा है व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ रोल्स रॉयस। दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द विजन। दैट इज द विजन ऑफ द कार। व्हाट डू यू वांट टू बिकम 15 years down the line, 20 years down the line, 50 years down the line, है ना। कहते हैं ना विजनरी थे। विजनरी का क्या मतलब? पहले से उनके दिमाग में था क्या करना है, राइट। फिर मिशन आर द शॉर्टर गोल्स टू अचीव विजन, है ना। शॉर्टर गोल्स, छोटे छोटे स्टेप्स। अब विजन तो ये है कि छत पे पहुंचना है,
तो मिशन वो हर स्टेप है जो आप ले रहे हैं छत पे चढ़ने के लिए। अब एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो इफ देयर आर एनी कंप्यूटर साइंस टीचर्स अमंग्स यू और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर पढ़ा है, तो उसमें एक चीज होती है लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग और एक होती है शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। या अगर आप कंप्यूटर साइंस के नहीं भी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भी पढ़ा है, तो आप फ्रॉम द वेरी टर्मिनोलॉजी यू कैन गेस लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग इज विजन और शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग इज द मिशन। ठीक, जैसे किसी प्लेयर का विजन है कि आई वांट टू बिकम द नंबर 1 प्लेयर इन द होल वर्ल्ड, उसका विजन हुआ। इन ऑर्डर टू अचीव दैट विजन ही और शी विल सेट स्मॉलर गोल्स कि इस सीरीज में मुझे इतने रन बनाने हैं, इतने विकेट लेने हैं, इतने कैचेस पकड़। अब सीरीज बाय सीरीज, मैच बाय मैच वो अगर मिशन स्टेटमेंट्स मीट करते जाएगा, सो अ डे वुड कम व्हेन ही और शी विल बिकम द नंबर 1 प्लेयर। तो mission are the shorter goals to achieve vision. Vision is the longer plan or longer version. Vision is the longer version, mission is the shorter version. अच्छा, अब विजन मिशन बने कैसे? ऐसा तो है नहीं कि आप रात में सोए थे और सपने में किसी ने विजन मिशन दिखा दिया कि आपने डिपार्टमेंट का ये रख लो। अच्छा, अगर देख भी लिया आपने ड्रीम में, तो उसको बनाइएगा नहीं, क्योंकि आप फिर उसके पीछे दिमाग और जान नहीं लगाएंगे अचीव करने के लिए, क्योंकि यू गॉट इट द इजी वे। एक बुक के प्रीफेस में मैंने पढ़ा, देयर इज नो इजी वे टू लर्निंग। जो चीज आप हार्ड वे अचीव करते हैं ना, उसकी वैल्यू होती है। तो फॉलो अ प्रोसेस। जैसे इंस्टीट्यूट विजन मिशन से अलाइन करके आपका डिपार्टमेंट विजन मिशन होना चाहिए। अब दो बातें यहां समझ लीजिए। आप कहेंगे डिपार्टमेंट विजन मिशन क्यों बता रहे हैं आप? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग अभी यंग फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपको अभी डिपार्टमेंट विजन मिशन के बारे में वरीड होना चाहिए। अ डे वुड कम व्हेन यू विल बिकम प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वाइस चांसलर, वहां पर आप इंस्टीट्यूट विजन मिशन के बारे में सोच रहे होंगे। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इंस्टीट्यूट विजन मिशन करेंगे तो उसको किससे अलाइन करें? उसको अलाइन करेंगे आप फाउंडर के विजन मिशन से। जो भी फाउंडर है, पर्सन है, ट्रस्ट है, गवर्नमेंट है, जो भी है, उनका क्या विजन है उससे अलाइन करेंगे अपने विजन को। उनका क्या मिशन है उससे अलाइन करेंगे अपने विजन मिशन को। देखिए अलाइनमेंट क्यों जरूरी है, मैं आपको जोक याद दिलाऊं, आप लोगों ने सुना होगा जरूर। देयर वर दीज 4 फ्रेंड्स, है ना, उन्होंने सोचा कुछ काम करना चाहिए, तो उन्होंने एक पुरानी गाड़ी खरीदी और टैक्सी में चलाई। अब पहले दिन वो चारों अब टैक्सी में बैठे रहे, किसी ने हायर नहीं किया। भाई कोई आया नहीं, तुम्हारी टैक्सी ली नहीं किसी ने, क्यों नहीं ली? पता लगा खुद चारों अंदर बैठे थे, तो कोई कैसे आता? हर कोई समझ रहा था टैक्सी भरी हुई है। तो उनको समझाया गया, भाई अलग तुम लोग बाहर निकल के खड़े हो, टैक्सी खाली होगी तभी तो कोई आएगा, उसको लेगा किराए पर। अच्छा साहब, नेक्स्ट डे वो स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का लगाना है। अब दिन भर धक्का लगाते रहे चारों, गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। क्यों नहीं आगे बढ़ी भाई? पता ये लगा कि उसमें से 2 लोग जो हैं वो पीछे से आगे धक्का लगा रहे थे और 2 लोग जो हैं वो आगे से पीछे धक्का लगा रहे थे। तो भाई गाड़ी कैसे बढ़ेगी? फिर तो नहीं बढ़ेगी गाड़ी। चारों को एक डायरेक्शन में धक्का लगाना पड़ेगा। चारों जब एक डायरेक्शन में धक्का लगाएंगे तब तो आगे बढ़ेगी वो। तो इसी तरह विजन मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड विजन मिशन ऑफ द डिपार्टमेंट शुड अलाइन। अब इंस्टीट्यूट विजन मिशन तो इधर ले जाना चाह रहा है और डिपार्टमेंट का विजन मिशन इधर ले जाना चाह रहा है, तो यू विल एंड अप नोवेयर, है ना। तो इसलिए अलाइनमेंट जरूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद आप इन्वॉल्व कीजिए फैकल्टी को, इंडस्ट्री को, मैनेजमेंट को, सबका व्यू लीजिए। डेटा ऑन फ्यूचर, है ना, तभी तो फ्यूचरिस्टिक बनेगा, वरना वो मिनिमल मॉडल बन के रह जाएगा। प्रोफेशनल बॉडीज को इन्वॉल्व कीजिए, पेरेंट्स को लीजिए, इन सब की व्यूज लीजिए। और पहली बार में नहीं बनेगा, इन सब की व्यूज को आपने करके ड्राफ्ट 1 बनाया, 1.0, फिर आप वापस जाइए, देखिए अलाइन है नहीं इंस्टीट्यूट विजन मिशन से। फिर फैकल्टी, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, डेटा ऑन फ्यूचर, प्रोफेशनल बॉडीज, पेरेंट्स, उनसे चेक कीजिए, फिर उनके व्यूज आए, वर्जन 2.0 बनाइए। इस तरह से 2-4 जितने भी इटरेशंस की जरूरत हो लेकर, देन यू विल गेट दी विजन एंड मिशन आर्टिकुलेटेड।
अच्छा, अभी भी जो बन गया दैट इज नॉट कार्व्ड इन स्टोन। हम लोग उसको पत्थर पे खुदवा जरूर देते हैं, लेकिन प्रोवर्बियली इट्स नॉट कार्व्ड इन स्टोन। जो भी विजन मिशन बनाया उसकी एक्सपायरी तय कीजिए। ये विजन हमारा 30 साल का है, 30 साल बाद हम फिर बैठेंगे, सोचेंगे हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, फिर चेक करेंगे फैकल्टी, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, डेटा ऑन फ्यूचर ऑन दैट डे, प्रोफेशनल बॉडीज, पेरेंट्स से। और हो सकता है हम यही विजन कंटिन्यू कर जाएं अगले 30 साल, 20 साल, 10 साल, और हो सकता है हम चेंज करें। इसी तरह मिशन सेट किया है तो भाई ये हमारा मिशन जो 15 साल का है, 15 साल बाद हम फिर बैठेंगे, इसको रिविजिट करेंगे, है ना। तो नथिंग इज परमानेंट इन आउटकम बेस्ड, एवरीथिंग इज डायनामिक, नथिंग इज स्टैटिक। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की, आपको समझाने के लिए। जरूरी नहीं कि आप हमारा ही विजन मिशन ले लें। फिर वही बात है, हमारा विजन मिशन आप ले भी लेंगे कि बहुत अच्छा लगा हमको, तो आपने इन सबको तो इन्वॉल्व नहीं किया है, ये लोग फिर मदद नहीं करेंगे उसको अचीव करने में। फैकल्टी, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट जब इनको इन्वॉल्व करके जो चीज बनाएंगे फिर वो आपकी हेल्प भी करेंगे उसको अचीव करने में। तो अब देखिए कैसे, इन लाइन विद द विजन ऑफ द फाउंडर, इसलिए कि हम बना रहे हैं इंजीनियर, हम प्रिंसिपल हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज का विजन बनाना है, तो अलाइन करना पड़ेगा फाउंडर के विजन से। तो in line with the vision of Sir Syed Ahmad Khan, who is the founder of the Aligarh Muslim University, the Zakir Hussain College of Engineering and Technology has always stood for peaceful coexistence, academic excellence and scientific temper. अब ये तो हुआ फाउंडर का, हमने अपने कॉलेज का क्या बनाया, टू बिकम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। देखिए एक्सीलेंस लिया हमने यहां से, इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन। साइंटिफिक तो ठीक था, हमने टेक्निकल ऐड किया बिकॉज वी आर एन इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड रिसर्च with standards at par with national and international institutes of repute, and to serve as quality human resource provider. Peaceful coexistence का इसमें आ गया, to the society and industry, है ना। तो ये हुआ हमारा विजन। अब इस विजन को अचीव करने के लिए हमारे मिशन स्टेटमेंट्स, to offer state-of-the-art UG, PG doctoral programs, to make policies and atmosphere to attract and retain best faculty, to create an ambience in which new ideas and cutting-edge research flourish through effective curriculum and infrastructure, so as to produce the leaders and innovators of tomorrow, to produce ethically strong and morally elevated human resource to serve mankind, to undertake collaborative projects and consultancy for long-term interaction with the academia and industry, and to be among top 10 engineering institutes of India. अब जैसे जैसे हमारे मिशन अचीव होते जाएंगे वैसे वैसे हम विजन के करीब होते जाएंगे। चलिए, अब पिरामिड में दो चीजें कवर हो गई ऊपर वाली, विजन हो गया और विशन हो गया, विजन हो गया और मिशन हो गया, ठीक। अब बात करें, ये हो गए इंस्टीट्यूट लेवल के। अब बात करें दो जो प्रोग्राम लेवल के हैं, पीईओ एंड पीओ। PEO, as I said, are from the matured graduates, 4-5 years down the timeline. PO are those qualities which should be there at the time of graduation. That is why it is aligned with graduate attributes. है ना। इसकी एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, फ्रूट इज राइप, है ना, मैंगोज ले लीजिए आप, मैंगो इज राइप, मैंगो इज राइप, PO। लेकिन वो मैंगो कैसा बना, उसका टेस्ट कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, वो PEO है। वो कैसे पता लगेगा, जब वो मार्केट में जाएगा, लोग उसको लेंगे तो लोग बताएंगे कि भाई वो आपका आम बहुत अच्छा है, आपका मैंगो बड़ा, स्मेल अच्छी, बड़ी अच्छी, उसकी टेस्ट बड़ा अच्छा है, उसका साइज बड़ा अच्छा है, अपीयरेंस बहुत अच्छा है, लुक बड़ा अच्छा है ना। तो फ्रूट इज राइप वर्सेस इट्स टेस्ट, कलर, स्मेल ना। राइप इज PO और टेस्ट, कलर, स्मेल इज लाइक PEO। अब ये कहां से आएंगे, डिफाइनिंग ऑफ PEO's प्रोसेस। देखिए, इंस्टीट्यूट विजन मिशन से अलाइन करके डिपार्टमेंट विजन मिशन, उससे अलाइन करके आपको PEO बनाना है। ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को भी लीजिए और कंसल्टेशन प्रोसेस कीजिए। फैकल्टी, स्टूडेंट, डेटा ऑन फ्यूचर, एलुमनाई, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल बॉडीज, इन सब के व्यूज को कलेक्ट करेंगे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। समराइज द व्यूज बाय प्रोग्राम असेसमेंट कमिटी, एक्सेप्ट और रिव्यू बाय डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड। और जब फाइनली 1, 2, 4 इटरेशंस के बाद ये एक्सेप्ट होगा
तो अगेन PEOs will not be carved in stone. You will have to attach an expiry to it. भाई 10 साल बाद हम PEO को रिविजिट करेंगे कि हमारे PEO सही हैं कि नहीं, है ना। तो दिस इज द डिफाइनिंग ऑफ PEOs, प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग। इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फॉर कलेक्टिंग व्यूज, प्रोग्राम असेसमेंट कमेटी फॉर समराइजिंग और डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड फॉर एक्सेप्टिंग और रिव्यूइंग। अब PO के लिए हमें समझना पड़ेगा ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, क्योंकि हमको उसको अलाइन करना है ग्रेजुएट एट्रीब्यूट से। याद है ना आपको, ये पिरामिड में जब PO की बात हुई थी तो यहाँ हमने उसको GA से अलाइन किया था, है ना। GA से हम अलाइन कर रहे थे उसको, PO को। तो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं क्या? अब मैंने तो जैसे इंजीनियरिंग नॉलेज लिखा है, आपका कोई और एक्सपर्टीज है तो आप वो उसकी नॉलेज। फिर प्रॉब्लम एनालिसिस, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मॉडर्न टूल यूसेज, है ना। इफ यू आर स्टिकिंग टू दी ओल्ड टूल्स दैट विल नॉट हेल्प। अब जमीन खोदनी, आप वही खुरपा फावड़ा लेकर आ जाएं तो कहा जाएगा नहीं भाई, मॉडर्न टूल्स हैं उनको यूज करो। आई रिमेम्बर when we were students, we had a vice chancellor at our university who used to say there was a time when people, if they did not know English, they were treated as illiterate. Now is the time, वो कहते थे, late 80s की बात है, now is the time, if you don't know computers you will be treated as illiterate. तो वो एक तरह से हमारे यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर रेवोल्यूशन लेकर आए। आज की डेट में अगर कहा जाए तो if you don't know AI you will be treated as illiterate. A modern tool AI है। AI is not the end in itself, it is the means to the end. It will give you a starting point, है ना। AI से आपने कोई पेपर लिख लिया तो वो पेपर फाइनल नहीं है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब उस पेपर को आप रिफाइन कीजिए अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस यूज करके। इस तरह मॉडर्न टूल यूसेज होना चाहिए। इंजीनियर एंड सोसाइटी, देखिए मैं फिर आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, Why Silicon Valley is Silicon Valley? My answer is Silicon Valley is Silicon Valley because Stanford University and University of California at Berkeley are there. These two universities have developed an ecosystem around them. उनके graduates निकले, उन्होंने startups बनाए, startup success stories हुई, उससे उन्होंने फिर यूनिवर्सिटीज को फंडिंग दी, फंडिंग से उन्होंने बेटर ग्रेजुएट्स बनाए, उन्होंने फिर स्टार्टअप्स बनाए, उन सक्सेस स्टोरीज को उन्होंने फर्दर स्ट्रेंथन किया, है ना। सो सिलिकॉन वैली बिकॉज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कली आर देयर। आपने सुना होगा गूगल कंपनीज एस्टैब्लिश्ड बाय द 2 PhD स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। दैट्स अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी। In a country like ours, we have very good institutes, IITs, IIMs, NITs, central universities, institutions of excellence. But outside the four walls of those IITs, IIMs, or AIMS, a rickshaw puller or a tea seller or a hawker doesn't know what this IIT, IIM is all about. The benefits of these excellent institutes are not percolating down to society. तो जो भी आपकी एजुकेशन है, दैट द बेनिफिट्स शुड परकोलेट डाउन टू द सोसाइटी। फिर इसी तरह एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, देखिए मैं तो कहता हूं वी इंजीनियर्स आर द बिगेस्ट कल्प्रिट ऑफ डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरमेंट। वी ओवरडू थिंग्स। हम जब छोटे थे तब पॉलिथीन आई मार्केट में, एवरीबॉडी वाज ओवरजॉयड, अरे वंडर मटेरियल आ गया साहब, इतना लाइट है और वाटर प्रूफ है और साहब इजी टू कैरी है, फलाना ये वो, और इंसुलेटर ऑफ हीट है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमने इतनी पॉलिथीन बनाई बिना सोचे समझे। अब नाउ वी आर क्राइंग कि भाई वो तो डीके नहीं हो रही, अब क्या होगा, एनवायरमेंटल हैजर्ड बन गया। मैंने कहीं पढ़ा, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। तो सोचिएगा आप, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री that we do not learn from history. हमने अपना सबक नहीं लिया, we haven't taken lessons. आज की डेट भी हम वही मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं जो हमने पॉलिथीन के शुरू में की थी। Everybody is talking about solar energy, हर जगह सोलर पैनल्स लगा दिए। ये नहीं सोच रहे हैं कि 20-25 साल बाद
जब ये सोलर पैनल डिस्कार्ड होंगे तो कहाँ जाएंगे, वो नहीं सोच रहे हम, है ना। तो वी आर ओवर डूइंग थिंग्स. तो environment and sustainability is a very important factor in our education system. इसी तरह ethics है. ethics अगर एक इंजीनियर के अंदर एथिक्स ना हो तो पूरा देश बेच खाएगा. ऐसे इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, अकेले भी काम कर सकें, टीम वर्क में भी काम कर सकें हम. चाहे अकेले दे दिया जाए तब भी हम परफॉर्म करें, टीम हो तब उसके साथ भी परफॉर्म करें, कोलैबोरेशन में भी काम करें. कोलैबोरेशन का पहला लेसन जब मैथमेटिक्स का वो सवाल हम सॉल्व करते थे कि 2 आदमी ये काम 5 दिन में करते हैं तो 4 आदमी ये काम कितने दिन में करेंगे, दैट इज कोलैबोरेशन, है ना. हम सिंगल्स भी अच्छा खेल सकें और डबल्स या टीम स्पोर्ट भी अच्छा खेल सकें. ऐसे ही कम्युनिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट. देखिए मॉडर्न मेडिसिन और यूनानी या आयुर्वेद या ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में फर्क सिर्फ कम्युनिकेशन का है. मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन दे केप्ट कम्युनिकेटिंग. जितना एडवांस हो गए अब हार्ट ट्रांसप्लांट कर ले रहे हैं, जानवर का हार्ट जो है वो आदमी में लगा दे रहे हैं. हमारे आयुर्वेद हकीम, उन्होंने अपने बेटे तक को नहीं सिखाया, जो भी उनका फन था उसको लेके कब्र में चले गए या शमशान घाट चले गए. तो थिंग्स डिड नॉट प्रोग्रेस, एवरीबडी वाज रीइन्वेंटिंग द व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. सो दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ लॉन्ग लर्निंग, द स्टोरी डजंट एंड द डे वी ग्रेजुएट, इट स्टार्ट्स. कोई बीटेक करके कहे काम खत्म तो कहा जाएगा नहीं भाई काम तो अब शुरू होगा. कोई एमबीबीएस करके कहे काम खत्म तो कहा जाएगा नहीं काम तो अब शुरू होगा, लाइफ लॉन्ग है. ऐसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फिनेंस, एवरीथिंग रन्स ऑन मनी, तो फिनेंस भी देखना पड़ेगा, चीजें वही सस्टेन कर पाएंगी जो प्रॉफिटेबल होंगी. ऐसी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम ब्रिज बना रहे हैं लेकिन उसको बनाना है फ्लड के आने से पहले पहले, फ्लड के आने से पहले पहले नहीं हम डिलीवर कर पाए तो फ्लड आके जितना बनाया वो भी बहा देगा. तो ऑल दीज ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर सिस्टम ऑफ ग्रेजुएशन. ठीक, तो ये हमारे ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हुए जिनसे हम पीओस को अलाइन करेंगे. अब ये वही डिटेल है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका, तो मैं स्किप करता हूं ये स्लाइड्स. तो प्रोग्राम आउटकम्स आर narrower statements that describe what students are expected to know and be able to do by the time of graduation. है ना. बस एक मिनट, I'll get back. चलिए, तो what are the guidelines for the POs? Program outcomes basically describe knowledge, skills and behavior of students as they progress through the program as well as by the time of graduation. POs should not be too broad. They must align with graduate attributes. They must reflect all the graduate attributes and they should contribute to achieve PEOs. है ना. तो upward compatibility भी हो, downward भी हो. POs ऐसे होने चाहिए जो PEOs को मीट करने में हेल्प करें. A process of defining POs is very similar to that of PEOs. इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट विजन मिशन से आपने PEOs को अलाइन किया, उससे PO को अलाइन करेंगे. फिर ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं प्रोफेशनल बॉडीज, एलुमनाई, इंडस्ट्री, डेटा ऑन फ्यूचर, स्टूडेंट, फैकल्टी, कंसल्टेशन प्रोसेस लिया. व्यूज आर कलेक्टेड बाय प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, समराइज्ड बाय प्रोग्राम असेसमेंट कमिटी एंड एक्सेप्टेड और रिव्यूड बाय द डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड. और जब एक बार बन गया तो उसकी डेट तय कर दी कि 7 साल बाद, 8 साल बाद, 6 साल बाद हम इसको रिविजिट करेंगे. पीओस को हम रिविजिट करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो रीडिफाइन करेंगे, नहीं तो सेम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रिविजिट जरूर करेंगे. फिर एक नई टर्म आई है पीएसओ, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम. तो पीओ और पीएसओ में क्या फर्क है? देखिए, पीओ और ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स में तो 1-to-1 अलाइनमेंट है, हर ग्रेजुएट का एक पीओ. PSOs on the other hand are lesser in number and specific to a program. समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं. Take it as an example. Don't take it as a political anything. 3 यूनिवर्सिटीज हैं, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन दिल्ली. तीनों जगह MA इन हिस्ट्री चल रहा है मान लीजिए.
POs of MA in history will be same in all 3 universities, but PSO may vary. AMU में से कि हमारा PSO जो है वो medieval history है. BHU can say that our PSO is ancient history. JNU may say that our PSO is modern history. तो PSO में vary. या कहीं पर BSc in chemistry चल रहा है, कई यूनिवर्सिटीज में BSc in chemistry. POs तो हर जगह सेम होगा, लेकिन अपने फोकस के हिसाब से somebody might say कि हमारा PSO is organic chemistry, कोई कहेगा हमारा PSO is inorganic chemistry, कोई कहेगा हमारा PSO is physical chemistry, है ना, कोई कहेगा हमारा PSO is analytical chemistry. तो PSO are lesser in number and specific to a program. फिर आखिरी चीज जो इस pyramid में है वो कोर्स आउटकम्स है ना. देखिए, विजन मिशन एट द इंस्टीट्यूट लेवल, फिर PEO और PO एट द प्रोग्राम लेवल, फिर आखिरी जो है वो CO है. दे शुड बी स्टूडेंट फोकस्ड, नॉट प्रोफेसर फोकस्ड. स्टूडेंट के हिसाब से बनाइए, अपने हिसाब से नहीं. दैट मीन्स इट शुड बी लर्निंग ओरिएंटेड, नॉट कवरेज ओरिएंटेड. देयर हैज टू बी अलाइनमेंट बिटवीन कोर्स, प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल्स, यानी ऊपर से नीचे तक अलाइनमेंट होना चाहिए इसमें. फोकस ऑन एबिलिटी सेंट्रल टू द डिसिप्लिन. जैसे आपका जो सिलेबस है वो उसमें अगर यूनिट सिस्टम है तो हर यूनिट का जो सेंट्रल आइडिया वो एक CO बना दीजिए. तो उस कोर्स में 4 यूनिट है, 4 CO बन जाएंगे. 5 CO है, 5 यूनिट है तो 5 CO बन जाएंगे. फोकस ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग दैट विल एंड्योर. फिर मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं. मैं PhD कर रहा था IIT दिल्ली में. तो एक प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक फॉरेन डिप्लोमेट, posed a question. He said, which programming language do you teach your students? His reply was an eye-opener. That professor of computer science from IIT Delhi, he said, we don't teach them language, we teach them programming. भाई लैंग्वेज तो कभी फोर्ट्रैन है, कभी C आ गई, फिर C++ हो गई, फिर C# हो गई, फिर वो जावा आ गई, फिर पाइथन आ गई, कल को कोई और होगी. लैंग्वेज सिखा के छोड़ दिया तो जब लैंग्वेज खत्म तो आपकी नॉलेज खत्म. हम तो प्रोग्रामिंग सिखाते हैं कि कोई लैंग्वेज आए हमारा बच्चा अडॉप्ट कर सके, है ना. वो है नॉलेज दैट एंड्योर्स द टेस्ट ऑफ टाइम. दे शुड बी लिमिटेड टू मैनेजेबल नंबर. इतने ज्यादा मत बना दीजिए कि मैनेज ही नहीं कर पा रहे. एंड दे शुड बी स्पेसिफिक एनफ टू बी मेजरेबल. वेग मत बनाइए, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल टू OBE. अब थोड़ा सा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात करेंगे. बेंजामिन ब्लूम 1913 टू 1999. तो हम सीधे चलते हैं इनके टेक्सोनॉमी लेवल्स पर. देखिए, लर्निंग लेवल्स हैं. सबसे पहला लेवल होता है नॉलेज, उसके ऊपर होता है कॉम्प्रिहेंशन, उसके ऊपर होता है एप्लीकेशन, ऑन टॉप ऑफ इट इज एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएशन. नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ. एग्जाम्पल दूं मैं आपको. आपने बच्चे को सिखा दिया, उसने रट लिया, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, नॉलेज हो गई. अरे भाई कॉम्प्रिहेंड करो, गोल का क्या मतलब है, स्फेरिकल है, सर्कुलर है, फ्लैटेंड ऑन द पोल्स है. तो नॉलेज के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन का होना जरूरी है. फिर अगला लेवल होगा एप्लीकेशन. आप उसको अप्लाई कर सके. भाई गोल है तो वो रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, रोटेशन से दिन रात बदल रहे हैं, रेवोल्यूशन से सीजन्स बदल रहे हैं, है ना. तो ये तीनों लेवल्स तो हर बच्चे के अंदर होने चाहिए, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन. फिर इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, दे आर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. क्या फर्क है एनालिसिस, सिंथेसिस में? देखिए, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं. मान लीजिए एक कोई सिस्टम है. दैट कुड बी अ कंप्यूटर सिस्टम, दैट कुड बी एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, दैट कुड बी अ मैकेनिकल सिस्टम, दैट कुड बी अ पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम. कोई एक सिस्टम है. सिस्टम थ्योरी पूरा अलग एक लेक्चर है ना. बहुत शॉर्ट में सिर्फ मैं इशारे में आपको समझाऊं. कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम में क्या फर्क है? कंप्यूटर तो वो हार्डवेयर है जो आपको दिख रहा है. कंप्यूटर सिस्टम इज द हार्डवेयर प्लस द सॉफ्टवेयर प्लस द यूजर. अब सिस्टम बना, जब यूजर आया तब सिस्टम बना वो. तो एक कोई सिस्टम है आपके पास, उस सिस्टम का जाहिर है कुछ इनपुट होगा और कुछ आउटपुट होगा. कुछ आप इनपुट देंगे, कुछ आउटपुट उसका होगा. जब आपको इनपुट पता हो, सिस्टम पता हो, आउटपुट निकालना हो, दैट इज एनालिसिस. ठीक, इनपुट पता है, सिस्टम पता है, यू हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट, दैट इज एनालिसिस.
अगर आपको इनपुट पता है, आउटपुट पता है, सिस्टम बनाना है, दैट इज सिंथेसिस, विच ऑब्वियसली इज मोर चैलेंजिंग, कि इनपुट पता है, आउटपुट पता है, सिस्टम सिंथेसाइज करना है। फिर सबसे ऊपर इवैल्यूएशन होता है कि जो कुछ किया उसको इवैल्यूएट कीजिए। नहीं इवैल्यूएट करेंगे तो व्हाट्स यू कांट मेजर यू कांट कंट्रोल। ठीक, इसको लोगों ने रिविजिट किया, एंडरसन कारुथवाल ने 2001 में। अब इसमें बाकी लेवल्स वही रखे, टू रिमेंबर, टू अंडरस्टैंड, टू अप्लाई, टू एनालाइज, टू एनालाइज में सिंथेसाइज भी आ गया, दोनों आ गए। फिर एक उन्होंने टू इवैल्यूएट के ऊपर उन्होंने एक ऐड किया, टू क्रिएट। अब देखिए, दो टर्म्स आपने सुनी होंगी, एक टर्म है इनोवेशन और इन्वेंशन। क्या फर्क है दोनों में? इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या फर्क है? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का किसी को रास्ता ही पता नहीं था, किसी ने रास्ता निकाला, ये हुआ इन्वेंशन। रास्ता था लेकिन किसी ने बेटर रास्ता निकाला, दैट इज इनोवेशन। ठीक, रास्ता मालूम नहीं था, देयर इज नो, यू डिडंट नो द पाथ एंड यू फाउंड इट आउट, दैट इज द इन्वेंशन। रास्ता था लेकिन बेटर पाथ निकाला, दैट इज इनोवेशन। फिर एक टर्म होता है डिस्कवरी। इन्वेंशन डिस्कवरी में क्या फर्क है, उसके लिए मैं आपको एक जोक शेयर करता हूं, हो सकता है आपने पहले सुना हो, बट दैट विल मेक यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी फॉर एवर। एक बच्चे ने अपने फादर से पूछा, डैड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी? सो द डैड सेड, लुक सन, इट इज लाइक दिस, I discovered your mom and then we invented you. I discovered your mom and then we invented you. जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको ढूंढने का नाम डिस्कवरी, और जो एग्जिस्ट नहीं कर रही उसको बनाने का नाम इन्वेंशन है। तो इन्वेंशन, इनोवेशन, डिस्कवरी, ये सारे टू क्रिएट में आ जाते हैं, है ना? वो चीज ऐड हुई यहां पर। तो एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन या फॉर दैट मैटर क्रिएशन, दे आर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसीलिए जब आप क्वेश्चन पेपर भी बनाएं तो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन के साथ साथ मार्क्स दीजिए, और किस सीओ का ये है क्वेश्चन वो बताइए। CO1, CO2, CO3, जिस यूनिट का होगा वो वाला CO होगा, प्लस कौन सा टेक्सोनॉमी लेवल है। आप वो नॉलेज का क्वेश्चन पूछा है, कॉम्प्रिहेंशन का पूछा है, एप्लीकेशन का पूछा है, एनालिसिस, सिंथेसिस क्या है वो, है ना? क्वेश्चन पेपर ऐसे बनाइए कि कुछ नॉलेज में से पूछिए, कुछ कॉम्प्रिहेंशन, कुछ एप्लीकेशन, कुछ एनालिसिस, कुछ, ताकि अच्छे स्टूडेंट खराब स्टूडेंट का फर्क पता लग सके। आप अगर सारा नॉलेज में ले लेंगे तो हर कोई कर लेगा, अच्छे बुरे का फर्क नहीं रहेगा। आप एनालिसिस, सिंथेसिस ही बनाएंगे सिर्फ, तो खराब जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो पास ही नहीं हो पाएंगे, है ना? हम चाहते हैं पास हर स्टूडेंट हो, नंबर कमाए उसके जो मेहनत नहीं कर रहा है ना? तो अब ये ओबी स्टेप्स हो गए हमारे। डिफाइन आउटकम्स, सबसे पहले सेट द बार, डिफाइन आउटकम्स, देन डिजाइन क्यूरिकुलम, डिलीवर इंस्ट्रक्शंस, डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन की पूरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। कल को आपने जॉब चेंज कर दिया, दूसरे कॉलेज, दूसरे इंस्टीट्यूट में चले गए आप, तो अब अगला आदमी फिर वहीं से स्टार्ट कर रहा होगा। भाई होना ये चाहिए था जहां आपने छोड़ा वहां से स्टार्ट करो। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया हुआ होगा तो वो वहां से स्टार्ट करेगा जहां से आपने छोड़ा। तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिटर्मिन एडवांसमेंट। जो कुछ व्हाट यू मेजर इज ऑल फ्यूटाइल इफ यू डिडंट डू दी कंट्रोल और एनहांसमेंट, है ना? तो ये ओबी स्टेप्स हो गए। अब देखिए, मैं एक फिगर आपसे शेयर करूंगा, आप अभी घबराइए नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये है क्या। इस एक फिगर से आप असेसमेंट भी समझ लेंगे और कंट्रोल भी समझ लेंगे। बस जरा सा मेरे साथ रहिए आप। कोई एक प्रोग्राम आपने लिया, मैंने बीई इन ट्रिपल ई लिया है, आप बीएससी इन केमिस्ट्री ले लीजिए, आप एमए इन सोशियोलॉजी ले लीजिए, जो भी प्रोग्राम, मैं तो एग्जाम्पल लिए। उस प्रोग्राम का उसके एक कोर्स का रिजल्ट बताएगा डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ सीओ इवैल्यूएशन। एक डायरेक्ट कंपोनेंट होगा, एक इनडायरेक्ट कंपोनेंट होगा, है ना? CO1 के जितने क्वेश्चन थे उसके मार्क्स में से बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए। मान लीजिए CO1 का क्वेश्चन हमने 10 नंबर का पूछा था,
10 में से ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स आए, तो 70% इज द डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ सीओ इवैल्यूएशन। फिर आप बच्चों ही से पूछिए एट द एंड ऑफ एवरी कोर्स एवरी सेमेस्टर कि बच्चों तुम लोग क्या फील करते हो, तुम्हारे अंदर CO1 कितना आया, CO2 कितना आया, CO3 बच्चों बताने दीजिए, एवरेज ले लीजिए। वो इनडायरेक्ट कंपोनेंट हो गया ऑफ सीओ इवैल्यूएशन। देखिए मैंने कहा था ना, पिरामिड जब हम असेस कर रहे होंगे तो हम नीचे से ऊपर चलेंगे, सीओ सबसे पहले हम असेस करेंगे, तो वो सीओ असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट कंपोनेंट आ गया रिजल्ट से, इनडायरेक्ट कंपोनेंट आ गया कोर्स एंड सर्वे से, दोनों को मिला दीजिए इन अ रेशियो 70-30, 75-25, 80-20। अब आप पूछ रहे होंगे ये कहां से आप ले आए 70-30, 75-25, 80-20? अरे भाई कहीं से लाए हो, लेकिन पहले डिक्लेयर कीजिए कि हम 70 रखेंगे डायरेक्ट कंपोनेंट, 30 रखेंगे इनडायरेक्ट, 75 रखेंगे डायरेक्ट, 30 रखेंगे इनडायरेक्ट। ये नहीं कि पहले कर लो फिर इसका रेशियो सेट करेंगे, नहीं। डिफाइन द रूल्स ऑफ द गेम बिफोर द गेम बिगिंस। ठीक, तो ये हुआ आपका सीओ इवैल्यूएशन। अब ये सीओ इवैल्यूएशन डायरेक्ट कंपोनेंट बन जाएगा उस पीओ की इवैल्यूएशन का जिसमें ये सीओ मैप्ड है। उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपोनेंट कहां से आएगा? एग्जिट सर्वे। जो ग्रेजुएट निकल रहे हैं उनको दीजिए कि भाई ये PO1, PO2, PO3, PO12 तुम्हारे अंदर कितना कितना आया बताओ, एवरेज ले लीजिए। वो हो गया उसका इनडायरेक्ट कंपोनेंट। ऐसी एलुमनाई से पूछिए, आप हमारे यहाँ से पढ़ के गए थे, आपके अंदर PO1, PO2, PO3, PO12 कितना आया बताइए, उसका एवरेज ले लीजिए, दोनों को कंबाइन कर दीजिए इक्वल में, है ना। फिर उसके बाद वो 70-30, 70 डायरेक्ट कंपोनेंट, 30 इनडायरेक्ट, या 75-25, 80-20 जो भी पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, वो हुआ पीओ इवैल्यूएशन। ये पीओ इवैल्यूएशन डायरेक्ट कंपोनेंट बन गया पीओ इवैल्यूएशन का। इनडायरेक्ट कंपोनेंट आया एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर से पूछिए, आज से 5 साल पहले हमारे से बच्चा पढ़ के गया था, वो कैसा मैनेजर बना, है ना। किसी इंस्टीट्यूशन से पूछिए, हमारे से बच्चा पढ़ के गया था, वो कैसा टीचर बना ना। तो एम्प्लॉयर से आप सर्वे ले लीजिए। एलुमनाई सर्वे यहां भी ले सकते हैं आप, कि आप हमारे यहाँ से 5 साल पहले पढ़ के गए थे, कौन कौन से पीओ कितने आए आपके अंदर आए, क्या फील करते हैं, है ना। इस एलुमनाई सर्वे में फर्क ये है कि यहाँ पर सारे एलुमनाई होंगे, यहाँ पर सिर्फ सीनियर एलुमनाई होंगे जो कम से कम 5 साल पहले ग्रेजुएट किए हुए हैं, क्योंकि हम पीईओ इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। इसी तरह दिस पीईओ इवैल्यूएशन बिकम द डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ मिशन, उसका इनडायरेक्ट कंपोनेंट फीडबैक ले लीजिए। फिर वो बन जाएगा डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ विजन, उसका सर्वे ले लीजिए आप ट्रस्ट से या जो भी फाउंडर्स हैं उनसे, गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, वो बन जाएगा विजन का इवैल्यूएशन। तो ये बात तो हो गई असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, सीओ कैसे हो, पीओ कैसे हो, पीईओ कैसे हो। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी तो आपने मेजर किया है, असेस किया है, अब कंट्रोल भी तो कीजिए। तो आप क्या करेंगे, जो आपका असेस्ड सीओ है उसको कंपेयर करेंगे टारगेट सीओ से। ठीक, इसीलिए आप देखिए यहां पर प्लस माइनस है, डिफरेंस देखिए टारगेट सीओ से कितना पीछे रह गए। यहां पर तो हर जगह प्लस प्लस था, डायरेक्ट कंपोनेंट इनडायरेक्ट कंपोनेंट को आप ऐड कर रहे थे हर जगह, है ना। यहां पर प्लस माइनस है कि असेस अचीव सीओ और टारगेट सीओ कितना कम रह गया, ऐसी टारगेट पीओ से असेस पीओ कितना कम रह गया, ऐसी टारगेट पीओ जो टारगेट सेट किया था, बार सेट की थी, उससे अचीव पीओ कितना कम रह गया। इस डिफरेंस को आप तीनों डिफरेंसेस को ऐड कर लीजिए, प्रपोज द इंप्रूवमेंट बाय द ओबीई एडमिन, एंड द नेक्स्ट टाइम यू रन द प्रोग्राम दैट बी अ बेटर प्रोग्राम बिकॉज लर्निंग हैज गॉट इनटू इट। ठीक है, तो इस एक फिगर से आप असेसमेंट भी समझ सकते हैं और कंट्रोल भी समझ सकते हैं। अब ये इसी की डिटेल्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा था, है ना। हाँ, अब इवैल्यूएशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट कैसे हो, ये मैंने बताया था ना। देखिए ये चीज प्रपोज इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ तो एक बॉक्स मैंने दे दिया, अब इसको देखना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट हो कैसे। उसके लिए 3 डायमेंशन जो मैंने शुरू में बताई, है ना, क्या क्या थी, या तो क्यूरिकुलम को आप चेंज कर लीजिए, या डिलीवरी एंड असेसमेंट को चेंज कर लीजिए, या हो सकता है आपको रिवाइज रीडिफाइन पीओ को ही करना पड़ जाए। भाई बार इतना ऊंचा सेट कर दिया था, हम अचीव ही नहीं कर पा रहे, तो नीचे कर लो, या अचीव कर लिया है तो ऊपर करो, है ना।
तो ये 3 डायमेंशनल अप्रोच फॉर इंप्रूवमेंट। तो ये ओबी फ्रेमवर्क हो गया। देखिए ऊपर वाला जो आपको ये लाइट येलो है दैट इज इंस्टीट्यूट लेवल, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये प्रोग्राम लेवल, और ये आखिरी वाला कोर्स लेवल है ना, ये लेवल जो है वो कोर्स का हो गया, लिखा भी हुआ इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम कोर्स। और ये कंटिन्यूअस साइकिल है, ऐसे असेस करेंगे और ऐसे इम्प्रूव करेंगे, फिर असेस करेंगे फिर इम्प्रूव करेंगे, है ना। और इसके अंदर आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इनपुट और फीडबैक लेते रहेंगे। ये ओबी फ्रेमवर्क आपका इन अ नटशेल हो गया। चलिए अब व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रीडिफाइनिंग ऑफ पीओस? एलुमनाई सर्वे, ग्रेजुएट सर्वे, इंडस्ट्री प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर, पीओज असेसमेंट, फैकल्टी व्यूज, इन सब को लेकर देखिए कि नीड फॉर रीडिफाइनिंग पीओज है। यस, तो क्यूरिकुलम चेंज करेगा बोर्ड ऑफ स्टडीज, डिलीवरी मेथड चेंज करेगा मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर, और अगर पीओ में ही चेंज चाहिए तो वो प्रोग्राम असेसमेंट कमेटी चेंज करेगी, जिसको डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड अप्रूव या डिस्कार्ड करेगा, रिव्यू करेगा, है ना। 3 डायमेंशनल अप्रोच इसमें हो जाएगी। अब व्हेन टू असेस, देखिए कोर्स आउटकम अपॉन द कंप्लीशन ऑफ एवरी कोर्स एवरी सेमेस्टर, प्रोग्राम आउटकम एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, और प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फ्यू इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, 4 to 5 years after graduation. Redefining process of PEOs is very similar. Alumni survey, graduate survey, industry program coordinator, module coordinator, POs assessment, faculty views. Is there a need for redefining POs? Yes. तो curriculum change करे board of studies, regulations change करनी है तो academic council में जाइए, और अगर PEOs को ही change करना है तो program assessment committee change करेगी, department advisory board will accept or will recommend review. ठीक है, तो ये redefining process of PEOs हो गया। Thank you very much. This is all from my side. Now I invite your questions if there are any. चलिए अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो बताइए। Thank you very much, sir. Yeah, you're welcome. It was an eye-opener session, sir, mashallah. It has always been, sir, always. And Yeah. what a line I discovered your mom and invented you. We will never forget the difference between discovery and invention now. Because the participants, if you have any doubt, any question, any clarification you want from sir, sir is available here. But your question should be specific and it should be related to the presentation. देखिए कोई क्वेश्चन न पूछने के 2 मतलब होते हैं, या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। सब कुछ समझ में आ गया सर, माशाल्लाह। which side we are. अगर क्वेश्चन नहीं भी है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई इंटरेक्शन, एनी पॉइंट यू कैन टेक अप, ब्रिंग अप। Abru ma'am, or Abru ma'am is the associate professor in Jamia Hamdard, sir. Oh, And great. many associate professor and professors were listening you, sir, in this presentation. Fine. So Okay, participants, that's an honor for me. The comment has come, sir has explained very well. अच्छा चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। If there are no comments, no questions, then I'll take your leave. Okay, Thank sir. you very much. Thank you once again, sir, for sparing time from your busy Okay. schedule. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you. Walaikum salam. Participants, our next session will be at time, I think it's a break now, and link has already, I think, been shared. The next session will be from one resource person from University of Kerala. He will deliver his talk on life skills. So he will join us at 3:30. Right now it's 3:13. So after 15 minutes, we'll be again, inshallah, assemble here and we will listen to him. Okay. 15 minutes break is there. Thank you, sir. Have a cup of tea and then we will again be listening to a very senior teacher educator. तो सर पेटीएम जी ये क्या जी अहमद सर, मैंने कहा टी के लिए ये क्या आप मतलब ये क्या पेटीएम करेंगे जी क्या? जी मैंने कहा टी के लिए आप
क्या पेटीएम करेंगे? ती आप लोग अपने घर पे पीजिए, और अगर ऑफलाइन होती तो वी वुड हैव ऑफर्ड, हम लोग ऑफर करते जरूर ऑफलाइन में। टी के लिए आप पेटीएम करेंगे, इन्होंने बोला नहीं, 15 मिनट्स की ब्रेक है। पेटीएम ना, अच्छा पेटीएम, यू आर टॉकिंग तो अबाउट पेटीएम। नहीं, आई वुड ठीक है। हैव ऑफर्ड, अगर ऑफलाइन होता आई वुड हैव ऑफर्ड। जब एज एंड व्हेन यू विल कम टू विजिट, कम टू अलीगढ़, यू विल विजिट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आई विल ऑफर। ओके Okay, ओके सर, ओके सर। वालेकुम। चलिए 15 मिनट का ब्रेक है, देन वी विल मीट अगेन। ओके, अस्सलाम वालेकुम।